Hello, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I am here with the second chapter of class 6, that is the model millionaire. And as you know that it is not possible to complete the whole chapter in one lecture only. So this is the part 1. Okay, so let's start. The name of the chapter is the model millionaire. The model millionaire. Okay. So let's start it. Have you ever given a man some money thinking he is very poor and therefore needs it? How would you feel when you learn that he is actually a very wealthy man? So in the beginning of the story, it is asked that क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? Do ever happens with you that you have given some money to a man? आपने किसी व्यक्ति को कुछ पैसे दिए हों thinking he is very poor, क्या सोच के कि वो बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, and therefore needs it, इसलिए उसे उस पैसों की आवश्यकता होगी, शायद रिक्वायरमेंट होगी. How would you feel when you learn that he is actually a very wealthy man? पर बाद में आपको पता चले कि वो जो व्यक्ति जिसको आप पैसा देकर आए हैं वो बहुत अमीर व्यक्ति था, तो आपको कैसा फील होगा? तो ये एक ऐसी स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज ह्यूई Erskine. Huey Erskine. His name is Huey Erskine. So he was a lovable young man. So he is a very lovable. He's a young man. He is not very intelligent, though, but we must admit he is not very intelligent. We must admit. तो हमें ये मानना भी पड़ेगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं है. He never said a clever or even an unpleasant thing in his life, but he is a very good man. तो बहुत इंटेलिजेंट ना होने के बावजूद भी वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि उसने कभी भी कोई क्लेवरनेस, कोई चालाकी नहीं दिखाई और ना ही कोई इविल थिंग या बैड थिंग, बुरी चीज कभी किसी को कही है. कभी उसने कुछ बुरा काम नहीं किया. ठीक है. But he was wonderfully good looking with a handsome face, curly hairs and a grey eyes. So the author is trying to tell you the physical appearance of that man Huey. Okay. So he was wonderfully good looking. He was very good looking man with a handsome face. His face was very handsome and his hairs was curly and his eyes was grey. So it was a physical characteristics of this man Huey. He was very popular with everybody and he had every skill except that of making money. So the man Huey, the main character Huey, he was very popular among everyone. Everyone likes him because he had never done a wrong thing to anyone. So everyone likes him. He was very popular, बहुत popular है वो लोगों के बीच में. He have every skill. या ही हैज एवरी स्किल. उसके पास सारी की सारी क्वालिटीज हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक क्वालिटी उसके पास नहीं है. कौन सी क्वालिटी? टू मेक मनी, पैसा कमाने की. पैसा नहीं कमाना आता उसको क्योंकि बहुत भोला है शायद. ठीक है. When his father died, he left Huey no money at all. So one more thing we came to know here that his father is dead. Okay. उसके पापा अब नहीं है, पापा नहीं रहे उसके, और जब वो मरे तो उसने ह्यूई के लिए कुछ भी पैसा नहीं छोड़ा. जैसे लोग विरासत में अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, ह्यूई के पापा ने उसके लिए कुछ भी पैसा नहीं छोड़ा है. ह्यूई lived on a little money that an old aunt gave him. तो उसकी एक बूढ़ी आंटी है, वही जो उसको पैसे देती है थोड़े बहुत, उसी थोड़े बहुत पैसे से वो अपना गुजारा चलाता है. He tried his hand at several jobs, but he did not like any of them. So he tried to earn money, he tried to get a job. तो बहुत सारी जॉब्स में उसने कोशिश करी कि मुझे जॉब मिल जाए, और मिली भी होगी शायद, बट ही लाइक्ड नो वन. तो मतलब कोई भी जॉब ह्यूई को पसंद नहीं आई, मतलब उसे अच्छा ही नहीं लगा वो जॉब करना. ठीक है. फाइनली ही बिकेम नथिंग. तो अंत में वो क्या बन गया? वो कुछ नहीं बन पाया. ठीक. अ डिलाइटफुल अनसक्सेसफुल यंग मैन विद अ हैंडसम फेस. अभी ह्यूई की बात करें अगर हम, तो वो क्या है? एक डिलाइटफुल, एक बहुत अच्छा डिलाइटफुल, एक अनसक्सेसफुल, बिल्कुल मतलब नाकामयाब कह सकते हैं आप जिसको, अनसक्सेसफुल, विद अ हैंडसम फेस. एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है दिल का,
लेकिन नाकामयाब है, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन फेस बहुत अच्छा है उसका, हैंडसम फेस है। एंड नो जॉब, सो ही हैव नो जॉब, उसके पास कोई जॉब नहीं है। टू मेक मैटर वर्स ही वॉज इन लव, और चीज़ों को खराब करने की बात करो, ऐसी पैसे नहीं है, गरीबी है, और इससे भी बुरी चीज़ क्या है कि ही इज़ इन लव, उसको जो है वो किसी से शादी करना चाहता है, ही इज़ लव, किसी को पसंद करता है। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मर्टन, तो जिस लड़की को वो पसंद करता है उस लड़की का नाम क्या है, लॉरा मर्टन। द डॉटर ऑफ रिटायर्ड कर्नल, तो जिस लड़की को वो पसंद करता है उस लड़की का नाम है लॉरा मर्टन, और ये लॉरा मर्टन अमीर लड़की है। ये जो लॉरा मर्टन है ये एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी है, कर्नल की बेटी है, ठीक है। लॉरा एंड हियर लॉरा एंड ह्यूई वर डीपली इन लव, तो लॉरा और ह्यूई दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं क्योंकि दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दे वर हैंडसमेस्ट कपल इन द लंदन, अगर लंदन में वो लोग रहते हैं, लंदन की बात करें तो पूरे लंदन में सबसे ज्यादा अच्छे कपल है, सबसे अच्छी जोड़ी उन्हीं लोगों की है, ठीक। एंड डिड नॉट हैव मनी बिटवीन देम, और एक ऐसे कपल है वो लोग, एक ऐसे जोड़ी है उनकी जिनके बीच में कभी पैसा नहीं आता, क्योंकि पैसा है ही नहीं इसके पास, ह्यूई के पास। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूई बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी मैरिज, तो कर्नल को भी ह्यूई पसंद है, बहुत पसंद करता है कर्नल ह्यूई को, पर शादी की बात पर वो भी मानता नहीं है, ही वॉज डिसअग्रीड। Come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own, and we will see about it. जब भी ह्यूई पूछता है कर्नल साहब से कि आप मेरी शादी क्या इससे करा देंगे, अपनी बेटी से, तो मर्चन, लॉरा मर्चन से, तो क्या बोलते हैं कर्नल साहब, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे पास आना जब भी तुम्हारे पास 10,000 पाउंड हो, कितना हो, देखो ये इम्पोर्टेंट है, 10,000 पाउंड हो जब भी तुम्हारे पास, तब मेरे पास आना, वी विल थिंक ऑफ इट, अब हम इसके बारे में सोचेंगे, ठीक। और वो 10,000 पाउंड तुम्हारा अपना होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और का है, ये नहीं कि तुम्हें किसी ने उधार दिया तुम्हें वापस करना है, ऐसा वाला पैसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अपना पैसा होना चाहिए वो। He used to say Huey looked very unhappy on those days, तो ये कहा करते थे वो, और ह्यूई जो है बहुत नाखुश रहा करता था उन दिनों। Only his visit to Laura made him happy, सिर्फ जब वो लॉरा से मिलता था तभी वो खुश होता था, बाकी समय वो उदास ही रहता था। One morning he went to see a great friend of his, तो एक सुबह क्या होता है, ये जो व्यक्ति है ह्यूई, ये अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से मिलने जाता है। What is the name of his friend? एलन ट्रेवर, एलन ट्रेवर से मिलने जाता है ये। अब ट्रेवर वॉज अ पेंटर whose picture was eagerly bought by lovers of art, तो ये जो ट्रेवर है कौन, ये एक पेंटर है, ये ह्यूई का दोस्त भी है और ये पेंटर भी है, और ये इतनी अच्छी पेंटिंग करता है कि जो लोग, जिनको भी पेंटिंग्स का शौक है, वो इसकी पेंटिंग्स बहुत खरीदा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, ये दिस इज ह्यूई, दिस इज द ट्रेवर, एलन ट्रेवर जो पेंटर है, और ये किसी की पेंटिंग बना रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। He was very fond of Huey for his cheerfulness and good nature. Even this man, this painter, whose name is Ellen Trevor, ये भी जो है ह्यूई को बहुत पसंद करता है, क्योंकि ह्यूई जो है एक बहुत खुश मिजाज cheerful व्यक्ति है, और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। When Huey went in, he found Trevor painting a wonderful life-size picture of a beggar man. तो जब ह्यूई अंदर पहुंचता है तो क्या देखता है, अंदर जाता है तो देखता है कि ये जो ट्रेवर, इसका दोस्त एलन ट्रेवर है, वो पेंटिंग बना रहा है, और इतनी सुंदर पेंटिंग बना रहा है एकदम, जिसमें लग रहा है कि लाइफ है, इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग बना रहा है वो, ठीक है। और पेंटिंग किसकी बना रहा है, एक बेगर की, एक भिखारी आदमी की पेंटिंग बना रहा है। The beggar himself was standing on the raised platform in a corner of the studio, तो उस स्टूडियो में, उस पर्टिकुलर जगह पर एक कोने में एक थोड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म है, वहीं पर वो बेगर खड़ा हुआ है, खुद ही खड़ा हुआ है, अपनी पेंटिंग बनवा रहा है। He was very old man with a wrinkled face and a pitiful look, ये जो बूढ़ा आदमी है, जो भिखारी है, ये इसको देखकर ना ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि बेचारा बहुत गरीब होगा, बहुत बूढ़ा है, इसके चेहरे पर पूरी झुर्रियां पर, रिंकल्स मतलब होता है झुर्रियां पड़ गई हैं, एंड अ पिटीफुल लुक, और उसका जो चेहरा है वो एकदम ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत पिटीफुल, बहुत मतलब दयनीय कंडीशन है बहुत उसकी, ठीक है।
Over his shoulder he wore a coarse brown coat. अपने shoulders के ऊपर से उसने एक कपड़े का बना हुआ एक ब्राउन कलर का कोट भी पहना हुआ है. कोर्स मतलब क्या होता है? कोर्स मतलब नीचे देखो लिखा भी हुआ है. गो थ्रू इट वंस. वर्ड मीनिंग्स आपको याद करनी है. रफ क्लोथ, एक जो है कड़े से कपड़े का बना हुआ कोट है वो. ऑल टॉर्न, और वो भी बुरी तरह से फटा हुआ. His thick boots with patched, mended, and with one hand he leaned on the rough stick. इसके अलावा और क्या चीजें हैं? और चीजें क्या हैं कि उसने एक बूट पहना हुआ है जो कि जगह जगह से फटा हुआ है और उसको सिला गया है, मेंडेड है, पैचड है, ठीक है. और वो झुका हुआ है एक लकड़ी के सहारे, एक रफ लकड़ी. रफ यानी कि बहुत अच्छी लकड़ी नहीं, बेकार सी लकड़ी है, ऐसी बाहर से कहीं से उठाई वाली लकड़ी, और उसी पे झुक के खड़ा है. While with the other he held out his torn hat for the arms. दूसरे हाथ में उसने अपनी जो हैट है जो पकड़ी हुई है, other hand he held out his torn hat. फटी हुई टोपी है, हैट है, वो पकड़ी हुई है और ऐसे खोला हुआ है उस हाथ को जैसे कि उसको उसने आर्म्स यानी कि कुछ पैसे चाहिए. जैसे भीख मांगने के लोग पैसे लेने के लिए कटोरा नहीं आगे बढ़ाते, तो कटोरी की जगह अपने कैप में वो पैसे लेता होगा शायद. अभी देखो आप इसको देख भी सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये इस तरह से लेके खड़ा है हैट को. What a wonderful model, whispered Huey as he shook hands with his friend. As he entered, he shook hands with his friends. अपने दोस्त से हाथ मिलाता है और कहता है what a wonderful model, कितना अच्छा मॉडल है. And how miserable he looks. But I suppose to you painters, his face is a fortune. और क्या कहता है? हाथ मिलाता है, कहता है कि क्या मॉडल है, गजब का मॉडल है तुम्हारा. उस भिखारी को कहता है कि गजब का मॉडल है. इसका चेहरा देखो कितना मिजरेबल है, कितना बेचारा दयनीय स्थिति में है. और मुझे क्या लगता है, यूं ही बोलता है, आई सपोज, मैं जरूर ये बात जानता हूँ, मानता हूँ कि तुम जैसे पेंटर्स के लिए इसका चेहरा किस्मत है, क्योंकि तुम्हारी ये जो पेंटिंग है ना, ये तुम्हें पैसे दिलाएगी, है ना. तो एक तरीके से दोस्त के ऊपर टॉन्ट भी करता है और कहता है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी ये चीज शो करता है कि भिखारी को खड़े होकर पेंटिंग बनवा रहे हो और उसकी तो कंडीशन खराब है, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे उसके बदले में, ठीक है. So we will continue the next part in the next video. I hope you must have understood the same. It's over for today. I hope you have understood. Thank you. Stay blessed, stay safe, stay connected, and God bless you, my dear.